Assalamu alaikum students. I am your course instructor Miss Anika Saidzia for the subject Advanced Painting from University of Education, Bank Road Campus Lahore, and your course code is 4134. Your course outline is first topic is introduction, then there is looking back to the past, monochromatic tonal painting, importance of symbolic elements, practical assignments on the compositions, and then there will be preliminary sketches, painting on myself, master copy in which you will use a mirror, not a photograph, introduction on project on color harmony, modern concepts, social thought, self-portrait using palette knife technique, after World War II, reclined foreshortened figure pose, color, shape, composition, portrait painting, and there is self portrait from mirror or trait painting. So, today's topic is portrait painting, which is your lecture number 14. First, we will see that how in history artists have deal with the different portraits, especially with the self portraits. When creating a portrait, the artist makes certain choices about how to depict the sitter with respect to social, economic, and personality traits that go way beyond the physical representation of the sitter. So, here is an example of the self portrait. As you can see, it's a reflection in the mirror which has been painted by the painter. And on the left side, you can see there are different links of YouTube videos where you can easily understand that how to mix different skin tones and how to apply paint. The final image has to reflect the subject's own self concept and any opinions the artist has about the subject. Charles Wilson Pale, the artist in his museum, this self portrait was painted in 1822 by the artist himself, and he is shown standing in his own museum. In looking at most of the self portraits of Western European art, there are three main trends that stand out: hidden self portraits, the importance of the artist, self as subject. So, as you can see here in the painting, there is also a self portrait, hidden self portrait in the architecture. Sometimes artists paint themselves into a more active role or even into an uncomfortable position. The flayed skin of Saint Bartholomew in Michelangelo's Last Judgment is believed to be a self portrait of Michelangelo himself. Sometimes, if we used to see in the old masters' paintings, they used to paint their self portraits in a very hidden way, in a very interesting way. The open mouthed and blanky starring head held by a youthful David in Caravaggio's David with the head of Goliath is believed to be a self portrait of the artist Caravaggio, David with the head of Goliath. This is the name of the painting. ये painting का नाम है and it was painted by Caravaggio, and it is considered that it is a self portrait of Michelangelo, जो फिगर ने एक फेस और हेड को होल्ड किया हुआ है, इसको कंसिडर किया जाता है that it is the head. So, in a very interesting way, artist has composed the cutted head of Michelangelo. Artists have long been considered craftsmen or skilled workers. It was the Renaissance that saw the emergence of the artist as an individual or as a respectable professional, like the famous ancient Greek sculptors. सो रेनेसांस में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है दैट आर्टिस्ट को एक प्रॉपर रिस्पेक्ट मिली और आर्टिस्ट की थॉट्स को भी इम्पोर्टेंस दी गई दैट हाउ आर्टिस्ट परसीव
different ideas and how he used to see the sitter, जो आपका मॉडल है उसको आर्टिस्ट किस तरह से जो है वो अपने माइंड में परसीव कर रहा है। वरना उससे पहले ये था कि आपको कमीशन किया जाता था एंड यू हैव टू पेंट द पोर्ट्रेट अंडर द स्पेसिफिक गिवन गाइडलाइंस। आपको उसको आइडलाइज ही बनाना पड़ता था, आपको उसको खूबसूरत ही बनाना पड़ता था, चाहे आर्टिस्ट को वो इतना फैसिनेट कर रहा है या नहीं। बट कुछ मेजरमेंट्स थे, कुछ रूल्स थे जिनको आर्टिस्ट को हर हाल में फॉलो करना पड़ता था, बिकॉज वो कमीशन्ड काम भी होता था। और तब आर्टिस्ट को इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। आर्टिस्ट को एज अ क्राफ्टमैन डील किया जाता था। बट उसके बाद ये हमें देखने को मिलता है, स्पेशली इन रेनेसांस, that artist has given artist thoughts and ideas have been given special importance. And that's why in Renaissance different painters have made their name by doing such great works of art. While many artists struggled with how to assert themselves, a few created bold, stand-alone self-portraits. Durer's self-portraits were famous for their directness, strength, and the obvious reference to Christ in his 1500 AD portrait. सो हमें डिफरेंट आर्टिस्ट जो है वो रेनेसांस में मिलते हैं, जिसमें माइकल एंजेलो है, रफ़ेल है, रूबिन्स है, ड्यूरर है, मिसेचियो है, सो जियोटो है। बट जो हर एक आर्टिस्ट की अपनी स्पेशलिटी थी, हर आर्टिस्ट के अपने स्टाइल थे, हर स्टाइल का अपना करेक्टरिस्टिक्स थे। सो हर आर्टिस्ट की अपनी एक, आप कह सकते हैं कि स्टाइल या वे ऑफ डूइंग पेंटिंग था। बट उसमें हम अगर ड्यूरर को देखें तो ड्यूरर के जो सेल्फ पोर्ट्रेट्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, देयर इज़ अ डायरेक्ट आई कांटेक्ट विद द व्यूअर। सो एक डायरेक्ट आई कांटेक्ट जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है आपके पोर्ट्रेट को और उसको स्ट्रेंथन कर देता है। सो ड्यूरर के सेल्फ पोर्ट्रेट्स जो हैं वो बहुत बोल्ड हैं और बहुत डायरेक्ट हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर painters of the Renaissance. Velasquez Les Meninas is a masterwork with many interesting elements, but notably it also contains Velasquez's self-portrait at the easel. Basically, Les Meninas जो है, it is the name of a family, और जिसके हम फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे पेंटिंग में देख सकते हैं। दे आर डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स and they belong to the same family, and Velasquez has painted all these members. It was a commissioned work. Velasquez shows himself calmly in the presence of the king and queen who stand in the viewer's position. सो आर्टिस्ट ने, अगर हम पर्सपेक्टिव में देखें, इसको ऑब्ज़र्व करें, तो हमें पर्सपेक्टिव में मिरर नज़र आ रहा है और मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है वो आर्टिस्ट का अपना रिफ्लेक्शन है। सो आर्टिस्ट का एक तरह से आर्टिस्ट को पोर्ट्रेट किया जाता था उसकी बनाई हुई पेंटिंग में एज अ सिग्नेचर मार्क, जो एक उस आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करता था, उसका सिग्नेचर मार्क होता था। सो एक ट्रेंड बन गया था कि आर्टिस्ट अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग्स में अपने आप को कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग वे में रिफ्लेक्ट करते थे, अपने इमेजेस को, अपने पोर्ट्रेट्स को। सो ये एक कमीशन वर्क है और बट स्टिल जो है आर्टिस्ट को एक इम्पोर्टेंस दी गई है कि उसको एक फैमिली ने अपने कमीशनड जो पेंटिंग है उसके अंदर उसको पोर्ट्रेट किया है साथ। By placing himself prominently into this intimate family scene, Velasquez is showing us how highly respected he was in the Spanish Habsburg court, and not just a servant to his patron, King Philip IV. So हमें उस टाइम पीरियड में डिफरेंट किंग्स नज़र आते हैं, किंग्स एंड क्वींस, रॉयल फैमिलीज़। सो वहाँ पे ट्रेंड होता था कि आप अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स बनवाते थे, क्योंकि उस टाइम पे हमें फ़ोटोग्राफी या कैमराज इन्वेंटेड नहीं थे। तो पेंटिंग्स ही एक ऐसा मीन्स थे, एक ऐसा मीन था जिससे आप अपने इमेजेस को जो है कैप्चर कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग अपनी मेमोरीज को क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई सेल्फ पोर्ट्रेट्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता था इन एनी पेंटिंग। जो सेल्फ पोर्ट्रेट का सब्जेक्ट है, जॉनरा है,
इसको काफ़ी जो है वो प्रोमिनेंस और हाईलाइट किया गया उस टाइम में। तो वही बात हो रही है कि आर्टिस्ट हैज़ प्लेस्ड हिमसेल्फ इन दिस फैमिली पोर्ट्रेट, और जो कि ये बताता भी है कि जो किंग है सेल्फ वो आर्टिस्ट को कितना लाइक करते हैं और उसको जो है रिस्पेक्ट करते हैं और प्रेज़ करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं एक आर्टिस्ट की एफर्ट को। Many painters depict themselves with an easel, palette, and brushes to declare their identity and status as professional artist. अगर हम आर्टिस्ट की बात करें सेल्फ पोर्ट्रेट्स की, तो मेजॉरिटी ऑफ जो हमें सेल्फ पोर्ट्रेट्स मिलते हैं आर्टिस्ट के, they used to sit on the easel with the brushes in their hands and palettes in their hands. So they want to give a feeling that they are professional artists and they are doing their painting very professionally. So जो आर्टिस्ट थे वो एक इम्पैक्ट जनरेट करते थे व्यूअर्स के ऊपर, इस तरह से सेटिंग में आके कि वो ईजल के ऊपर जो है कैनवसेस को सेट करके प्रोफेशनली जो है उसको डील कर रहे हैं सेल्फ पोर्ट्रेट को। While male artists can switch back and forth between self portraits with and without the tools of the trade, the majority of female artists, especially the early ones, included the instruments of artistic creativity in their self portraits. सो अगर हम कंपैरिजन करें फीमेल आर्टिस्ट और मेल आर्टिस्ट का, सो उसमें हमें फ़ीमेल आर्टिस्ट जो है उनकी मेच्योरिटी इस तरह से नज़र आती है कि मोस्टली जो फीमेल आर्टिस्ट हैं उस टाइम के, उन्होंने अपने आप को इस तरह से पोज किया है, इस तरह से पोजीशन में दिखाया है, इस तरह के पोस्टर्स हमें मिलते हैं कि एज दे आर पेंटिंग ऑन द कैनवस, सेटिंग ऑन द ईजल, और बड़ा डायरेक्ट आई कांटेक्ट जो है व्यूअर के साथ किया हुआ है, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वो कन्वे करने की कोशिश की जाती थी। बट एज़ कम्पेयर टू द मेल्स अगर मेल आर्टिस्ट की बात की जाए तो उनमें से कुछ आर्टिस्ट हैं, फ्यू आर्टिस्ट वर देयर who have portrayed themselves while painting on any canvas. Otherwise, mostly females have done this kind of portraits. It's not uncommon for an artist to pick a theme and work through a series. So it's not uncommon for an artist to pick a theme and work through a series of related images. For example, Goya's, Capricorn's, and Monet's water lilies. For some artists, they themselves are the interesting theme. अच्छा, अगर हम डिफरेंट मूवमेंट्स की बात करें, जैसे हमें मिलती है डिफरेंट मूवमेंट्स में इम्प्रेशनिज्म, सिम्बलिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, बट मोस्टली जो इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट है उसके अंदर हमें काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे मिलते हैं जो कि जिन्होंने अपने ही सेल्फ पोर्ट्रेट्स को डिफरेंट सीरीज़ में डिवाइड किया है, डिफरेंट सीरीज़ ऑफ वर्क में डिवाइड किया है। सीरीज़ मींस कि आप एक ही सब्जेक्ट पे एक ही आइडिया के ऊपर डिफरेंट जो हैं वो डेवलपमेंट्स दिखा रहे हैं। मींस आप 5 to 6 पेंटिंग्स आप एक ही आइडिया पे कर सकते हैं, बट उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगी। बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट उसमें कुछ जो है वो एलिमेंट्स थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं। सो हमें इस तरह की सीरीज़ वर्क में भी नज़र आता है सेल्फ पोर्ट्रेट, जो कि गोया ने और मोने ने भी किए हैं। मोने की बात की जाए तो मोने ने वाटर लिलीज़ जो हैं, वाटर लिलीज़, पॉन्ड्स, ही हैज़ डन a great number of such canvases representing water lilies, ponds, जिसके अंदर ब्रिजेस हैं और पॉन्ड्स हैं, सम क्लोजअप्स हैं वाटर लिलीज़ के फ्लावर्स के। सो हमें डिफरेंट कॉम्पोजिशंस नज़र आती हैं बट उसका सब्जेक्ट जो है वो एक ही है मोने का। और इसी तरह अगर हम वैन गॉफ की भी पोर्ट्रेट्स की बात करें तो हमें वैन गॉफ के भी डिफरेंट पोर्ट्रेट्स नज़र आते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं होता था कि सीरीज़ वर्क में, सीरीज़ पेंटिंग्स में जस्ट सेल्फ पोर्ट्रेट्स ही हों। आपको मैंने जैसे बताया कि एक ही आइडिया के ऊपर डिफरेंट कॉम्पोजिशंस की जाती हैं। सपोज़ अगर आप कोई इंसैनिटी या कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, पेंटिंग में शो करवा रहे हैं, तो आपके जो
पोर्ट्रेट्स हैं वो डिफरेंट सिटर्स हो सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही मॉडल आपका हो, आपके डिफरेंट मॉडल्स हो सकते थे। और ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्फ पोर्ट्रेट्स ही हों, वो डिफरेंट कम्युनिटी से डिफरेंट फिगर्स भी हो सकते थे। सो इस तरह के हमें पोर्ट्रेट्स भी नज़र आते हैं। सो रोमांटिसिज्म वॉज एन आर्ट मूवमेंट जिसमें हमें एक आर्टिस्ट गोया मिलते हैं, और गोया जो है उसने काफ़ी साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं, ट्रॉमास हैं, उनको पेंट किया हुआ है। हॉन्टिंग सीन्स पेंट किए हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ सीरीज वर्क। सो वो जो है हमें वहाँ पे गोया की पेंटिंग्स में भी ये चीज़ नज़र आती है। Rembrandt returned to his self portrait 88 times in his career, showing this youth or age in progressive images executed as sensitively as his commissioned portraits and religious figures. Andy Warhol used his own portrait like any other pop art subject matter, and Vincent van Gogh turned inward, creating 30 self portraits in which he explored his increasingly expressive style. सो हमें रैम्ब्रंट जो है आर्टिस्ट हु बिलोंग्स टू द बरोक आर्ट, तो हमें 88 पोर्ट्रेट्स मिलते हैं आर्टिस्ट के, सेल्फ पोर्ट्रेट्स, जिसमें आर्टिस्ट ने अपने यूथ को, अपने मेच्योर पीरियड को, अपने ओल्ड एज को, मींस अपनी एज को और टाइम लैप्स को जो है आर्टिस्ट ने ब्यूटीफुली कैप्चर किया है। और कुछ हमें पोर्ट्रेट्स रैम्ब्रांड के इंडिविजुअली भी मिलते हैं, कुछ उसकी वाइफ के साथ भी हमें कॉम्पोजिशंस मिलती हैं। एंड एंड्री वेरोल जो हैं उनके भी हमें पोर्ट्रेट्स मिलते हैं इन पॉप आर्ट उसी स्टाइल में। और वैन गॉफ ने भी 30 सेल्फ पोर्ट्रेट्स अपने किए हैं, बट उनका पर्पस जो था वो अपने स्टाइल को एक्सप्लोर करना था, जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, अपनी फीलिंग्स को, उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए आर्टिस्ट ने वो पोर्ट्रेट्स किए हैं। सो Frida Kahlo, who worked with her own personal tragedies, physical pain, and self image almost exclusively. फ्रीदा kahlo एक बहुत फेमस आर्टिस्ट है, मैक्सिकन आर्टिस्ट, एंड शी बिलोंग्स टू द आर्ट मूवमेंट, and she usually used to paint her self portraits. And actually, when she was young, she faced a very severe injury or accident, जिसकी वजह से आर्टिस्ट जो है वो बिल्कुल स्टैंड नहीं कर सकती थी, और वो बिल्कुल ऑलमोस्ट जो है वो पैरालाइज हो गई थी, बेड के ऊपर आ गई थी। सो फरीदा खाला के काम को मॉडर्न आर्ट मूवमेंट में भी कंसिडर किया जाता है बिकॉज ऑफ हर सब्जेक्ट मैटर एंड स्टाइल ऑफ पेंटिंग। एंड so Frida has faced a lot of pain and injuries during her lifetime, and she was unable to bear any child, and it hurts a lot to her. And she has portrayed her inner emotions and inner pain in many self portraits with different symbolic elements. हमें डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं, कहीं पे हमें ब्लैक मंकीज नज़र आते हैं, कहीं स्पाइडर्स हैं, वॉर्म्स हैं, सो कहीं हमिंग बर्ड्स हैं। तो हर एलिमेंट का अपना एक जो है वो हिडन मीनिंग होता था। एंड एज यू कैन सी इन दिस पेंटिंग विच हैज़ द टाइटल ऑफ टू फरीदास, सो आर्टिस्ट ने अपने आप को कंसोल करने के लिए जो है अपना सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है। एंड जैसे कि हम देख सकते हैं कि दोनों के हार्ट्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, और एक दूसरे को कंसोल कर रही हैं, एक दूसरे को इनकरेज कर रही हैं। सो हमें नज़र आता है कि जो जितना ट्रॉमा और जितनी पेन आर्टिस्ट के माइंड में है वो उसने अपने पेंटिंग में पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, और जितना ये ब्लड शेड और ब्लीडिंग है वो फरीदा के डिफरेंट मिसकैरेजेस को और डिफरेंट सर्जरीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। सो सेल्फ पोर्ट्रेट डजेंट मीन दैट यू आर जस्ट capturing your reflection in the mirror. It means that you are portraying, you are trying to capture your inner emotions, your thoughts, you are doing your catharsis. So this is the end
for today's lecture. And आपकी जो है assignment वो भी यही है that you will do a self portrait, but it will be totally conceptual. It should portray your inner emotions and thoughts that you want to convey.